Okay, before I proceed with what I intend to teach in this class, there is something that I need to discuss with you. I got some requests from some students, and the request was a little strange because I was asked to speak a little more in Hindi or mix a bit more of Hindi because some students are not able to understand if it is being taught in English. Now, why is it strange? I have an issue with this because in this particular class, there may be students from North India who are well versed with Hindi, and there may be some students from South India who may not be well versed with Hindi. So, if I switch to, let's say, Hindi, that may also cause problems for some of the students. And in case of the presence of international students, I don't know whether they are present as of now or not, because this year the dynamics has changed a lot. Previously, we used to have many students from Afghanistan, and some of them from maybe Nigeria, some of them from Saudi Arabia. So if I speak in Hindi, they won't get anything. They won't understand anything. But I don't know what is the combination of the class right now. Still, if there is no objection to the students, I can mix a bit of it. I have no issues with that. And language is hardly should hardly be a barrier for between me and you. So I'm okay with both. मुझे दोनों ही लैंग्वेज आती है, मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे हिंदी में या इंग्लिश में. It's up to you. But कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये चीज़ आई थी. I thought I should discuss this with you. अब मैं अगर हर एक से इंडिविजुअल ओपिनियन मांगूंगा, if I ask you to opine on this, then various different opinions will be there in front of me, and I'll have to. It will be very difficult for me to choose. So instead of opening the forum for all of you, I'll just ask if there is any student in this entire class who does not understand Hindi, please let me know. कोई अगर हैं, if there is anyone who does not understand Hindi, maybe he has a background from South India, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, or maybe he's an international student and he does not know Hindi, please let me know. Just type in chat box or speak up that I don't understand Hindi, so that I can have a clear picture of what type of students are there in the class, whether I can cater to the requests that I received or not. Okay, because I haven't received any response, I assume as of now the class consists of the students who can understand Hindi well. Okay, so I will from now on try to mix a bit of it so that you can slowly develop a taste for the way I teach, and then I'll again maybe go back to complete English class, except here and there. Because this is something very important. Of course, what you are learning in your subject, like your programming or databases or operating systems or any subject that is there in your syllabus, that is important. ये आपके लिए ज़रूरी है, आपको पढ़ना है. But at the same time, if you wish to express what you have learned, what you have acquired as skills, then you should know English. And you should be able to express yourself fluently in English. Only then will you get a good job. Unfortunately or fortunately, whatever you wish to say, good or bad, जैसा भी आप इसे समझना चाहे समझें, but market का नॉर्म यही है. आप कुछ कर नहीं सकते हैं इसके लिए. आपको एक लैंग्वेज पसंद है, language does not guarantee that you are either better than a person who speaks a different language. हिंदी बोलने वाले necessarily इंग्लिश बोलने वाले से अच्छा हो, या इंग्लिश बोलने वाले necessarily हिंदी बोलने वाले से ज़्यादा qualified हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आप जैसा समझें, मार्केट का नॉर्म यही है कि दे कम्युनिकेट इन इंग्लिश. लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर एन IT कंपनी एंड दे हैव क्लाइंट्स ओवरसीज, मे बी they are working for US based clients, UK based clients. So how will you communicate with them? So there are these constraints. That's why they pick and choose those professionals who are good at. Yes. सर, आप दूसरी लिंक में आपने माइक ऑन नहीं किया, उनको आवाज नहीं आ रही. Okay, sorry, extremely sorry.
Really sorry for the that was caused to you, inconvenience that was caused to you. I forgot to open the mic on this link because it was open on that one, so it's a human error on my part. Anyway, there is nothing from the subject that I have discussed so far. I was discussing whether, based on the request that I received, that some of the students are not able to comprehend properly if I use 100% English, so they want me to mix a bit of Hindi. So I was asking if there is any student in this entire lot who does not understand Hindi. कोई स्टूडेंट है जिसे हिंदी नहीं आती है तो वो बता दे. अगर आती है सबको तो थोड़ा बहुत मैं मिक्स कर सकता हूँ, बट स्टिल आई प्रेफर इंग्लिश ओवर हिंदी फॉर सम रीजंस दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. सो अमंग दोज रीजंस इज your job. You want a job at the end of this BCA course, or after this if you want to pursue MCA, so you want a job, or you want to pursue something on your own. But in general, if you want a good job in a multinational company, you need good communication, excellent communication skills in fact, and that communication skills should be in a language of the industry, and the language of the industry is English. So you can say कि ठीक है मुझे काम तो आता है, मुझे स्किल तो आती है, इंग्लिश नहीं आती तो क्या होगा. आइडियली होना ऐसा ही चाहिए था, बट हम कुछ कर नहीं सकते. मार्केट का नॉर्म कुछ ऐसा है कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, और इंग्लिश ऑल ऑफ अ सडन नहीं आती है. आप माहौल बना के रखें जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट है, और फिर एक बार इंटरव्यू में जब आप फेस करने जा रहे हैं, आप ये सोचें कि अचानक से बिल्कुल फटाफट इंग्लिश मेरे मुंह से निकलनी शुरू हो जाएगी, और फॉर दैट मैटर एनी अदर लैंग्वेज. यू आर अ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर जस्ट लाइक मी. हम और आप कहीं यूएस या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में नहीं पैदा हुए, हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा. इसके लिए एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे यूज टू होना पड़ेगा. ओनली देन विल बी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश, अदरवाइज इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस. तो इवन दो यू नो अ लॉट, यू नो योर स्टफ, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द इंटरव्यूज. तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप एटलीस्ट क्लास आपको एक माहौल देता है. आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप आपस में स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, सो थोड़ी आदत होती है, आप यूज टू होते हैं सुनने के, बोलने के, तो वो चीज़ आपके लिए एलियन नहीं होती. ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन इफ यू हैव डन दैट, you are doing that again in a specialized seating that they call interview, you will not have a lot of issues with that. But if you are not doing this, all of a sudden if you go to an alien environment, then that will pose a lot of problem for you. Okay, so now let's share the screen and proceed with the subject. Setting के ऊपर बढ़ा रही है. Just a minute. Let me adjust my laptop. It's going sideways. I hope all of you can see my screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, in the previous class, we had discussed about media and information literacy. We dissected this definition, and we tried to understand all these words that are there in the definition so that you can have a better picture of what this definition means. And then we had a few terms in front of us that we discussed, and there are a few types of media. Did we discuss this slide? Had we reached here? Or is new? No, sir. Okay. So from here we need to start. We need to proceed. So you can classify media based on various different things, and one of the classifications is, as you see in this particular slide. Like, you can classify the media as print media, as broadcast media, as digital media. Of course, the broadcast media and digital media can be clubbed together in electronic media. So the print media, as you already know, is something that is printed. जो प्रिंटिंग प्रेस से निकल करके लिखा हुआ आपके हाथ में पेपर के फॉर्म में या बुक्स के फॉर्म में आता हो, उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं.
इसमें न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, कॉमिक्स हैं, ब्रशर्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं. The information is served in front of you in the form of printed pages. Now those pages may be the pages of newspapers, maybe the pages of magazines or journals or books, irrespective of that, but that is printed in ink on paper. So that is print media. Of course, in the olden days, when you didn't have these papers, you may use wood or a bark of a tree or maybe leather or anything. But again, something is printed there, that is print media. And broadcast media is, if you are aware of the terms like unicast and multicast and broadcast, you will appreciate it better. Unicast is when a message is a message originates from a source and it goes to a destination. So from the source, it reaches only one destination. That's why you call it unicast. It is sent to only one destination. And multicast is if, let's say, 5 or 6 or 7 or limited number of destinations are chosen. Let's say your message or your information that you want to convey goes to 5 or 6 or 7 different people, then that is multicast. And broadcast is it's relayed on a very broad scale. So many different people, you can't even count the numbers. They can join. It's available to a whole lot of population. So that is called broadcast media, like television, radio, satellites, mobile phones, films. So it is available. The signals are there. Just you catch the signals and get that information. You need some tool for that. Maybe you need a dabba, a box. एक टेलीविजन सेट चाहिए आपके पास, एक रेडियो चाहिए, कोई भी इस तरह की चीज चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट मीडिया. ब्रॉडकास्ट में बहुत ज्यादा लोगों तक या बहुत ज्यादा डेस्टिनेशंस तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है. आपने उसे send कर दिया है and that is available to be used, that is available to be utilized, and it's up to the users whether they wish to capture that information or not. डिजिटल मीडिया कहते हैं स्पेसिफिकली इंटरनेट से जुड़े हुए मीडिया को, जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं. डिजिट जो है वो नंबर सिस्टम में अगर देखा जाए तो आपने कभी अगर कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है. तो जो बाइनरी डिजिट्स में यूजुअली काम करते हैं जीरोज एंड वंस में, तो ऑफ कोर्स वो आपके पास जीरोज एंड वंस में नहीं रहता है, बट एट द हार्ट ऑफ इट द मशीन अंडरस्टैंड्स इन जीरोज एंड वंस. तो उस तरह का जो मीडिया होगा उसे डिजिटल मीडिया कहते हैं, as opposed to the analog media. तो इसमें जो signals transmit होते हैं तो ये usually high और low signal कहलाते हैं, या इसे आप 1 या 0 कह लें, ठीक है. There is nothing in between. But in analog you have a graph. Maybe you can have a continuous value, a continuum. You may have a value, let's say 0, 0.1, 0.2, 0.5, 3, 3.8. So all of these values make sense and they are meaningful values. But in case of digital media, this if you look at the core of it, तो जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, इन द एंड वो सिग्नल्स के थ्रू ही मैसेज कहीं भी जाता है. तो वो सिग्नल ट्रांसमिशन जो वेव फॉर्म जो होगा सिग्नल का, इट विल बी लाइक अप एंड डाउन, जस्ट हाई एंड लो. लेट मी ड्रॉ इट ऑन दिस so that you can understand. So let's say there is a signal, for example, like this. So you have a value over here, 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 and all these values make sense. On the other hand, if you have a graph like, say, just a minute. So this waveform either has a value 0 or on the y-axis if you see it's 1. So either 0 or 1. So here it is 0, here it is 1, here it is 0, here it is 1, here it is 0, here it is 1, here it is 1. So this is a digital wave and this is an analog wave. Now this 0 and 1 is just a symbolic representation. It may be, say for example, ये थोड़ा खराब लग गया, let me redraw it.
मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Suppose this is 5, this is 10. वोल्टेज के टर्म्स में अगर कहें, let's say this is 5 volt, this is 10 volt. तो 5 volt को let's say हम लो बोल देते हैं और 10 volts को हाई बोल देते हैं, ठीक है? तो ये हाई और लो, तो ये 5 जो है ये सिंबॉलिक जीरो जो है ना, इसको जीरो आप कह सकते हैं और इसको 1 कह सकते हैं. दिस इज जीरो, दिस इज 1, दिस इज जीरो, दिस इज 1, दिस इज जीरो, दिस इज 1. ये एग्जैक्ट जीरो और 1 वैल्यू नहीं है, जीरो और 1 रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं. दैट मींस यू हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, हाई और लो, ऑन और ऑफ, जीरो और 1, कुछ भी आप कहें, ठीक है? अच्छा और बुरा, गुड और बैड, ठीक है? लंबा और छोटा, बस आपकी क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बीच का कुछ भी नहीं, ठीक है? तो ये बाइनरी लॉजिक पर वर्क करता है. तो सिग्नल्स जब ऐसे ट्रांसमिट होते हैं तो उन्हें हम डिजिटल मीडिया कहते हैं. ऑफ कोर्स इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी. आप इंटरनेट का यूज किसी भी तरह से करें, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए करें या मेल्स के थ्रू करें. डिजिटल मीडिया में बहुत सारे डिजिटल वर्जन ऑफ योर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में आल्सो बी अवेलेबल. प्रिंट कॉपी नहीं है, आपके सामने वो पीडीएफ है या ई बुक के फॉर्म में है या वेबसाइट्स के फॉर्म में है जहां आप ब्राउज कर सकते हैं, उस पोर्टल पे न्यूज़ आप देख सकते हैं, ऐसी चीजें. दैट इज डिजिटल मीडिया. Media is the source of credible information where content is provided through an editorial process determined by journalistic values and where editorial accountability can be attributed to an organization or legal person. Now, there are a few things that you need to understand here. Credible information, and then there is an editorial process and there is journalistic values. Just a minute, somebody is trying to join the class. Wait. Fine. So what is credible information? An information on which you can rely, an information that you trust, that is called credible information. कहते हैं ना कि इस बंदे की कोई credibility नहीं है, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. वैसे ही इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी नहीं होने का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रस्टेड सोर्स से नहीं है. लेट्स से एक ट्रस्टवर्दी मेन स्ट्रीम कोई न्यूज़ पोर्टल है, कुछ भी आप रैंडम नाम ले लीजिए, लेट्स से द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है? अब द इंडियन एक्सप्रेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेसेसरली ट्रस्टवर्दी है या नहीं, या मुझे ये पसंद नहीं है, नहीं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस कोई इससे मिलता जुलता नाम बना दे, लेट्स से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और द इंडियन एक्सप्रेस डेली और द इंडियन एक्सप्रेस वीकली और समथिंग, कुछ मिलता जुलता जो रियल नहीं, और कुछ सिमिलर टाइप का लोगो बना करके एक वेबसाइट बना दे और उस पर फर्जी खबरें पड़ी हुई हों, तो वो इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल नहीं होगा. तो क्रेडिबिलिटी क्या है कि आप भरोसा कर रहे हैं, ठीक है? आप भरोसा गलत आदमी भी कर सकते हैं, वैसे गलत इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, गलत सोर्सेस पे भी कर सकते हैं, बट आप वो चाहेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके हिसाब से क्रेडिबल होनी चाहिए. तो आप इंश्योर करें कि वो करेक्ट यूआरएल ही आपने डाला है और एग्जैक्टली आप उसी सोर्स को विजिट कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, ठीक है? एडिटोरियल प्रोसेस क्या होता है कि लेट्स से न्यूज़ कई तरह की आती है, उसमें से कौन सा न्यूज़ रखना है न्यूज़पेपर में या न्यूज़ पोर्टल पे या मीडिया चैनल पे, और कौन सी न्यूज़ को हटाना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये एडिटर्स डिसाइड करेंगे. कुछ एडिटोरियल कॉलम्स होते हैं
जिसमें करंट इश्यूज पे, किसी हॉट टॉपिक पे जो एडिटर होता है उस न्यूज़पेपर का या जर्नल का या मैगजीन का, वो अपना व्यू देता है। लेफ्ट लीनिंग एडिटर होगा तो वो थोड़ा वैसा व्यू देगा, राइट विंग एडिटर होगा तो वो उस तरह का व्यू देगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार यही सही हो या वही सही हो। Many a times the truth lies in between. तो देखने दीजिए। प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए if it is not required. कहीं से नॉइज आ रही है। So there is an editorial process. Pick and choose the news. Ideally speaking, जो न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हैं उन्हें इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए और जो कम इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हटा दिया जाना चाहिए। But who will decide what is important and what is not important? This is very subjective. For me, something may be important. For you, that may not be important. तो ये सब्जेक्टिव होता है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करेगा। तो इसीलिए मैंने लेफ्ट लीनिंग और राइट लीनिंग की बात बताई कि यूजुअली जो स्पेक्ट्रम है लोगों का, वो एक ऐसा है जो बिल्कुल ही एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडस्ट्री, एंटी कैपिटलिज्म इस तरह का। दूसरा वो है जो बिल्कुल प्रो गवर्नमेंट, प्रो कैपिटलिस्ट और प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसा ग्रुप है। तो दोनों अलग अलग एक्सट्रीम पे हैं, ठीक है। कई बार उनकी कुछ बातें जस्टिफाइड होती हैं, कई बार इनकी कुछ बातें जस्टिफाइड होती हैं, और अक्सर बार ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच बीच की कोई बात जस्टिफाइड है। बट एनीवे, आपका जिस तरह का इंक्लिनेशन होगा दैट विल रिफ्लेक्ट इन द एडिटोरियल प्रोसेस दैट यू चूज। जस्ट फॉर एग्जांपल, रिसेंट की 2 न्यूज़ आपको बताता हूँ। अभी इंडिया में ड्रग्स वाला 2 मामला है, न्यूज़ में आप देख रहे होंगे। क्या आप बता सकते हैं कौन से 2? सर, एक पाकिस्तान से आया था और 3000 किलो हीरोइन आई थी, और एक आर्यन खान का केस है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, आज बेल मिल गई उसे सर। नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब मिले नहीं मिले मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसे जेल में रखे रहे, अगर ऐसी हरकत की है तो उसे सजा भुगतनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी कोई सिंपैथी नहीं है उसके साथ। 1 ग्राम भी मिला हो उसके साथ, उसका कोई कांटेक्ट भी हो, कहीं से वो फैसिलिटेट भी करता हो, उसके लिंक्स ऐसे लोगों के साथ हों, ठीक है, उसकी दोस्ती उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो, तो मेरी 1% सिंपैथी उसके साथ है, ठीक है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि 2 तरह की न्यूज़ आई। एक वो 3000 करोड़ का मामला था जो कि कोर्ट पे पकड़ाया, और एक ये था जो 8 ग्राम, 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम की कुछ बात हो रही थी, ठीक है। और वो भी उसके साथ पोजीशन में शायद नहीं मिला है, कुछ लिंक्स थे, कॉन्टेक्ट्स थे, आई डोंट नो। Now, this is the editorial process that will decide कि किस न्यूज़ को कितना वेटेज देना है। आप 3000 करोड़ वाले को ज़्यादा वेटेज देना चाह रहे हैं, या आप 10 ग्राम 12 ग्राम वाले को ज़्यादा वेटेज देना चाह रहे हैं। मे भी दूसरे कंसिडरेशंस में वो 3000 करोड़ का लेट्स से हमें सोर्स नहीं पता है, किसके पास से आया, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो शायद पब्लिक का इंटरेस्ट उतना नहीं हो। लेकिन कोई एक्टर है, कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। नाउ द मीडिया हाउसेस दे आर अगेन रनिंग देयर बिजनेस, उन्हें पैसा कमाना है। जितने ज्यादा लोग जिस चीज में दिलचस्पी लेंगे, देखेंगे, तो उतना ही वो ज्यादा एडवर्ट से चार्ज कर सकते हैं, कमा सकते हैं, ठीक है। नेसेसरली जरूरी नहीं है कि उनकी नजर में यही इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कम इंपॉर्टेंट है, बट दे विल बी ड्रिवन बाय दे विल इन फैक्ट अप्रोच दिस एंटायर इशू विद प्रॉफिट ड्रिवन मैकेनिज्म। तो इनको क्या चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये सेंसेशनल बन सकता है, ये स्टोरी जो है इसको थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके अच्छे से पेश किया जा सकता है, गो अहेड। तो वहाँ पे जर्नलिस्टिक एथिक्स आते हैं, बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। दिस वाज जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट दिस एडिटोरियल प्रोसेस एंटेल्स। एडिटोरियल प्रोसेस में क्या होता है, आप डिसाइड करेंगे किस न्यूज़ को कवर करना है, कितना कवर करना है, कैसे कवर करना है, ठीक है। आइडियली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें कवर किया जाना चाहिए, उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाना चाहिए, और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से उसे कवर किया जाना चाहिए। अब जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ की बात आ रही है। जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ क्या होती है? मतलब उसे कहते हैं कि पत्रकारिता के आदर्श, हिंदी में अगर कोई जानना चाहे, समझ में आया ना। तो जर्नलिज्म कहते हैं पत्रकारिता को, चाहे जैसे भी हो, प्रिंट मीडिया में कर रहे हैं, आप डिजिटल मीडिया में कर रहे हैं। और जो वैल्यूज़ हैं, वो जो आदर्श हैं कि कैसे होना चाहिए, वो मुझे एक फनी चीज़ इस पे याद आ रही है कि एक कॉमेडी शो होता है हमारे पड़ोस के मुल्क में, ठीक है। तो अगेन वो हमसे दुश्मनी वाला शो नहीं होता, वो एक फनी शो है। तो उसमें लूज टॉक उसका नाम है।
आपने शायद, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, लूज टॉक का कोई एपिसोड देखा? बांग्लादेशी क्रिकेटर। तो अनवर मकसूद साहब एक हैं जो कॉमेडी वमेडी करते हैं, कुछ करवाते हैं, तो उसमें थोड़ा डिसेंसी के साथ बातें की जाती हैं। बहरहाल, तो उस लूज टॉक के अंदर एक इंडियन जर्नलिस्ट को इनवाइट किया उन्होंने, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स वो बना करके ऐसा, ही मे नॉट एक्चुअली बी एन इंडियन जर्नलिस्ट। तो उसमें वो पूछ रहे हैं पॉलिटिकल जो चीजें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन बीजेपी वाज इन गवर्नमेंट, देन कांग्रेस केम इन पावर, देन बीजेपी केम इन पावर, तो ऐसा होता रहता है। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत थी तब तो आप उनके हक में बोलते थे, लिखते थे, और अब जब मनमोहन सिंह की हुकूमत आई है तो आप इनके प्रो हो गए हैं, इनकी तरफ आपका रुझान हो गया है और आप उन्हें बुरा कहने लगे हैं, ठीक है। तो उसने हंसते हुए एक बात बहुत सीरियसली कही कि देखिए, पत्रकारिता के कुछ आदर्श होते हैं, ठीक है, उस जर्नलिस्ट ने कहा। अब ये जो होस्ट हैं ये सर पकड़ के बैठे हुए कि ये कौन सा आदर्श है कि आप कभी इधर जाइए कभी उधर जाइए, पाला बदलते रहिए। उन्होंने कहा यही आदर्श होते हैं, मेरे भी बच्चे हैं, उनका पेट पालना है, तो पत्रकारिता का यही आदर्श है, ठीक है। तो एनीवे, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट लोगों ने ऐसा भी आदर्श बना लिया, दैट इज वैल्यू, उनका वही वैल्यू है, ठीक है। उन्हें चाहिए क्या, उन्हें जहाँ से पैसे मिलेंगे, जहाँ से रोटी मिलेगी, वो उसी तरफ मुड़ जाएंगे। तो ऐसे पत्रकार आजकल ज्यादा मिलेंगे आपको। Okay, media is any object that may be physical or may not be physical. Like electronic media, it's not a physical object. ये न्यूज़पेपर के फॉर्म में नहीं आएगा, बट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। That serves as a source or channel for information. Information की definition पहले आ चुकी है। It acts as channels of information and knowledge. It facilitates informed debates between diverse social actors. It serves as a means by which the society learns about itself and builds a sense of community. आपको अपने समाज के बारे में जानना है तो वो मीडिया के थ्रू पता चलता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सोसाइटी में। कहीं कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं कोई सरकार की कोई स्कीम आई है, कंट्री का कहीं नाम हो रहा है, किसी ने पदक जीता है, तो ये सारी चीज़ें जो खबर हैं, ठीक है, आप उसे पसंद करें या ना करें, आप उस जो खबर में जिन इंसिडेंट्स को कवर किया जा रहा है आप उसके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, बट इफ यू विश टू बी अवेयर, अगर आप सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मीडिया का इंपॉर्टेंस यहाँ है कि वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बताता है। क्यों आप जानना चाह रहे हैं, आप अपने आप को आइसोलेट करके क्यों नहीं रख रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट्स में क्या हो रहा है, दूसरी सिटीज में क्या हो रहा है, उससे आप क्यों मतलब रखते हैं। Because there is a sense of belongingness, there is a sense of community. You feel like you are from one of them and they are from one among you. Otherwise, you won't be doing this. Just a minute. Media functions as a watchdog of the government by promoting transparency in public life and public scrutiny of those with power. तो जो लोग भी पावर में होते हैं उनसे क्वेश्चन करना, उनकी पॉलिसीज के बारे में स्क्रूटिनाइज करना, उनके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस पोज करना ताकि वो बिल्कुल बेलगाम ना हो जाए, ये भी मीडिया का एक रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पर्पस है मीडिया। इट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मीडिया के जरिए से डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज आते हैं, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये फैसिलिटेट करता है। डिफरेंट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के जो लोग हैं वो अपने अपने व्यूज देते हैं, वो व्यूज आप तक पहुंचते हैं। इवन आप भी अपने व्यूज दे सकते हैं, आपके कोई लोकल इश्यूज हैं तो आप उसे लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में वो पब्लिश होता है, वो कंसर्न्ड अथॉरिटी तक जा सकता है, आपकी बातें आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फैसिलिटेटर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। Now let's talk about data. Data and information. We have differentiated data and information in the last class. Data is something like raw fact, and information is like some knowledge derived from that data. But irrespective of whether you call it data or information, it is generated in absurdly large quantities. What they call today, they have a term called data explosion, data proliferation. बिल्कुल इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि आप परेशान हो जाएं। आप एक कीवर्ड डालें गूगल पे, आपको हज़ारों पेजेस मिल जाएंगे उसके रिजल्ट्स में। अब आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए,
दे आर थ्रोइंग अ हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन यू। ये कैसे हो रहा है? पहले इतना आसान नहीं था, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इतनी सस्ती नहीं थी, इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं थी, इसलिए इन्फॉर्मेशन आप तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचती थी। कोई बुक है उसको एक्सेस करना है तो आपको पहले लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, तो किसी दुकान से जाकर खरीदना पड़ेगा। 100 में से 99 लोगों ने डिसाइड किया कि हम लाइब्रेरी नहीं जाएंगे, नहीं खरीदेंगे, उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। बट आज मैंने उस दिन आपको कहा था कि ये बुक है, तकरीबन सारे बच्चे वो बुक डाउनलोड करके मुझे मेरा व्हाट्सएप का मैसेज इनबॉक्स पूरा भरने लग गया उसी से। सबका बस सर ये बुक है, ये बुक है, हाँ यही बुक है। कैसे मिल गया आपको? इजीली, डिजिटल मीडिया, किसी ने किसी सर्वर पे अपलोड कर दिया और वहां से आपने डाउनलोड मार लिया। हर किसी के पास फिंगर टिप पे ही अवेलेबल है। तो आज के दौर में इन सब वजह से डेटा और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। डेटा रेफर्स टू फैक्ट्स, फिगर्स एंड वैल्यूज। इंफॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड इज व्हेन दीज डेटा आर प्रोसेस्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट। अभी इसका मैं एक लाइव डेमो भी आपको दूंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए। फॉर इंस्टेंस, द records and values of gas liters you pump and load। गैस लीटर्स भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, कोई भी फेल हो सकता है, वो डेटा है। When you process these to identify that you are spending X amount of money on gas alone and conclude that you are overspending, this becomes information. तो ऐसे इन्होंने differentiate किया। Now I have a live demo for you। इसके लिए let's say, ये तो चलिए डिजिटल मीडिया और इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। सपोज मैं आपका प्रोग्रामिंग का टीचर होता। बाय द वे आपको प्रोग्रामिंग कौन पढ़ा रहे हैं? मोहम्मद नाजिम से। अच्छा, नाजिम सर। तो तबरेज सर पढ़ा रहे सर। XYZ जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं उनकी जगह हो रहा हूँ और मैं पढ़ाऊंगा आपको सी प्रोग्रामिंग, लेट्स से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये एसेस करना है कि मेरी क्लास की क्या कंडीशन है, मेरी क्लास में प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड कितने बच्चों का है, कितनों का नहीं है। लेट्स से सारे बच्चे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से पढ़ के आए हैं, तो मुझे तो आसानी होगी उन्हें पढ़ाने में। लेट्स से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ के आया है, तो मुझे उतना ज्यादा बेसिक से और उतना ध्यान दे के पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से कुछ बच्चे पढ़ के आए हैं, कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, सिग्निफिकेंट परसेंटेज है जिसने पढ़ रखा है और लेस सिग्निफिकेंट परसेंटेज है जिसने नहीं पढ़ रखा, तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा, और कुछ चीजों के लिए मैं बच्चों को टाइप कर दूंगा कि आप आपस में इसे डिस्कस करें, एक दूसरे की हेल्प करें। मेरा लोड थोड़ा कम हो जाएगा, जिसका प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है वो दूसरों को बता देता है, और फिर अब अगर दिक्कत आती है तो फिर स्टूडेंट मुझे अप्रोच कर सकता है, तो मैं थोड़ा सा इसे डिसेंट्रलाइज कर सकता हूँ। अब ये जो एनालिसिस है, ये नॉलेज मुझे कैसे मिलेगी? मैं आपसे पूछूंगा आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, एक साथ मुझे 50 आवाज आएगी, उसमें कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे नहीं। मैं पूछूंगा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, कोई कहेंगे पाइथन, कोई कहेंगे सी, कोई कहेंगे C++, कोई कहेंगे जावा। सब मिला के मेरे पास मेरे कान में सुनाई देगा खिचड़ी, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, और मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करता हूँ और उस पर एक इन्फॉर्मेशन बनाता हूँ। अभी चैट बॉक्स में मैं एक लिंक पोस्ट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि आपका अब तक का प्रोग्रामिंग का क्या एक्सपीरियंस है, कौन सी लैंग्वेज आपने पढ़ी, प्रोग्रामिंग में आपने क्या लर्न किया है अब तक। तो मे भी आप अपने स्कूल कॉलेज में जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ आपने हो सकता है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो। लेट्स से आपने जावा पढ़ा है तो इसका आंसर आप करेंगे जावा। अगर आपने सी पढ़ा है तो आप इसका आंसर करेंगे सी। अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आप इसके आंसर में लिखेंगे पाइथन। अगर आपने कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है तो जस्ट लिखिए नन, ठीक है, NONE, नन, ठीक है। अब मैं मैं दोनों में कर रहा हूँ, ठीक है। और लाइव आप यहाँ देखेंगे एक चीज, आप आंसर टाइप करना शुरू कीजिए। अभी कॉलेज में जो पढ़ा उसके बेसिस पे मत बताइएगा, पहले जो पढ़ रखा आपने उस बेसिस पे बताइएगा, ठीक है। Assume that you are new to the college, new to the university, and I am taking your first programming class, and I want to ascertain कि कितने बच्चे इसमें ऐसे हैं जिन्होंने कुछ प्रोग्रामिंग की है, कितने हैं जिन्होंने नहीं की, और क्या क्या पढ़ा है। मैं यही जानना चाहता हूँ।
बहुत कम रिस्पॉन्सेज अभी आए हैं, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए, इसमें मुश्किल क्या है, फटाफट। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग वो लॉग इन करके बस सो गए हैं कहीं। फिर मैं वही करूंगा पहली क्लास वाला काम, सबकी वीडियो ऑन करवाऊंगा। I can promise you that if you participate actively in my class, you won't regret it. आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। चलिए, तो लगभग बच्चों ने रिस्पॉन्ड कर दिया है अब तक। अब इसको देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी मैं ये पॉइंटर को नहीं ले जा रहा हूँ वहाँ पे, और थोड़ा सा इसे जूम कर लूँ मैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये एक काइंड ऑफ वर्ड क्लाउड जनरेट हो गया है जिसमें डिफरेंट चीजें दिख रही हैं। कहीं आपको पाइथन दिख रहा है, कहीं जावा दिख रहा है, कहीं माइस्क्यूएल दिख रहा है, कहीं जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, कहीं सी प्रोग्रामिंग दिख रही है, कहीं सी प्लस प्लस एंड जावा दिख रहा है, कहीं कम्युनिकेट विथ कॉम्प ये दिख रहा है, और मेजरली आपको पाइथन और नन दिख रहा है। ठीक है ना? ये क्या है? डेटा है। आपके पास से डेटा आया मेरे पास, मैंने आपसे मांगा, आपने दिया। इसके बेसिस पे मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, नॉलेज में क्या गेन कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए था। लुक एट दिस, नन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 37, नेक्स्ट बेस्ट है 25। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है। अब मुझे पता नहीं था, लेकिन अब पता चल चुका है। इसके बेसिस पे मैं अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकता हूँ। नाउ आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू हैवंट एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड एट ऑल, तो मैं उस हिसाब से आपको बिल्कुल बेसिक से समझा के डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ बच्चे हैं जिन्हें पाइथन आता है, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड तो मैं उनसे दूसरे बच्चों की हेल्प करवा सकता हूँ। यानी मुझे ये पता है कि ये क्लास ऐसी नहीं इसमें किसी को भी प्रोग्रामिंग नहीं आती है। देयर आर सम स्टूडेंट्स, और सिग्निफिकेंट नंबर है, 26 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब थोड़ा बहुत काम उनसे लिया जा सकता है। ठीक है, उसमें उनका भी फायदा होगा और दूसरे स्टूडेंट्स का भी होगा। तो ये नॉलेज है। अगर मैं इसे ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसे नहीं करता, ये डेटा ऐसे कलेक्ट नहीं करता और आपसे बस अंदाजे पे मैं काम कर रहा होता या आपसे पूछता और अली आप कोई जवाब देते, तो शायद मैं इतने ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो डेटा, वो वैल्यूज हैं जो आप देख रहे हैं। पाइथन सी प्लस प्लस कुछ लिखा है आपने, नन लिखा है, और उसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो डेटा है 25, 37 ये। और इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी बेसिस पे जो हमने एनालाइज किया, असेस किया, जो नॉलेज उससे गेन किया, दैट इज इंफॉर्मेशन। जो मीनिंग वो सर्व कर रहा है डेटा मेरे लिए, दैट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेटिव तभी होगा जब थोड़ा ऑर्गेनाइज डेटा होगा। ऐसे सिर्फ आप नंबर्स कुछ लिख के भेज दें जिसका कोई सर पैर नहीं हो, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड के नॉलेज कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। Now let's talk about technology. So when we talk about digital technology or new media, it commonly involves internet. इंटरनेट की डेफिनेशन दे सकते हैं आप में। हर कोई इंटरनेट यूज करता है, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं यूज करेगा। अगर नहीं यूज करते होंगे तो आप हमारी क्लास में नहीं हो सकते हैं, बिना इंटरनेट के नहीं आ सकते हैं। तो इंटरनेट तो यूज सब करता है। कोई इंटरनेट डिफाइन करेगा, गूगल मत कीजिएगा, ईमानदारी से बता दिए। आंसर सही होगा गलत होगा कोई मसला नहीं, जस्ट लेट मी नो व्हाट इज इंटरनेट। Anyone? Sir, it's a big network. हाँ सर, उज़ैफ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। The internet is a worldwide network. वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ व्हाट?
Information, sir. Network of information. Inform. Computers. सर इंटरनेट जो था सर वो आउटकम था साइंटिफिक रिसर्च का नासा में Exactly. नासा में या कहाँ पे ये याद नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए में पहले वो यस सर डिफेंस यूएसए में साइंटिफिक रिसर्च का आउटकम की वो पूरी इसकी कहानी है बट होता क्या है इंटरनेट एक जगह सर इंटरनेट इज अ बिग नेटवर्क बिग जो कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, करता है सबको कनेक्ट। मैं कहूँ कि नेटवर्क let's say I call it a network of animals, am I right? A network of humans, am I right? No. You can call vast network. Network of what ये मैं जानना चाह रहा हूँ So computer. computers. To a certain extent this answer is in the right direction but this is not the correct answer. sir, network means connection. It is internet in fact is a network of networks. Of course when we call when we say something as a network it consists of a lot of entities, a number of nodes. Those nodes can be your computers, your mobile phones or anything. So let's say there is a network, a local area network, wide area network, Metropolitan network. metropolitan area network. Maybe there are different types of networks like some wired networks, some wireless networks. So all of these different types of networks spread across different geographical locations. When these networks connect together, we call them internet. That is what internet is. Anyway, so let's come back to this point. So it usually involves internet. That is a global system of interconnected computer networks. It is one of the most valuable innovations of the 20th century, without a doubt. Of course, this internet has enabled a lot of positive things as well as a lot of negative things. It is very, very powerful tool nowadays, and with the help of internet, you can access various important pieces of information that you could not have done, you could not be able to do otherwise. So इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत powerful tool है. And then comes literacy. So basically, literacy, as you already know, is the ability to read, write, and speak. आपको पढ़ना आए, लिखना आए, बोलना आए, आप सुन सकें, समझ सकें, communicate कर सकें, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकें. That is literacy. And when we talk about literacy in the context of media and information literacy, it refers to an individual's ability to receive, assess, process, share, and create information effectively, ethically, and properly for the purpose of expressing oneself, interacting with others, and contributing to the society. So this is a technical way of understanding literacy in the context of MIL. Of course, you are aware of what these terms mean because we have had a fair bit of discussion about these things in the first or second slide, right? So, in general, anything has two aspects. There is something called reception and something called production, right? Let's say if you are, forget about media. Let's talk about language, right? Is there anyone from, say, West Bengal? बंगाल से कोई है क्या इस क्लास में? Yes, sir. Yes. कौन है? So Shubhadeep. Shubhadeep Datta. Okay. Shubhadeep, your mother tongue is Bengali, right? Yes, sir. Now, your mother tongue is Bengali, so you can speak in Bengali and you can understand Bengali. That means ये बांग्ला जो ज़बान है, बांग्ला लैंग्वेज जो है, ये आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. मतलब इसका रिसेप्शन और प्रोडक्शन दोनों में आप स्ट्रॉन्ग. नेहा हल्दर, सर इमरजेंसी मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज मार्क माय अटेंडेंस. Okay, Neha, just write your name with section and then you can leave. Exceptionally, I'm allowing you today, so just in the chat box, write your section and name and then you can leave. So, okay, Shubhadeep. So, I was talking about this Bangla language. So, Bangla में आपका reception भी strong है, आपका production भी strong है. But let's say there is a language जिसमें थोड़ा-थोड़ा आप समझ तो लेते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते. ऐसी कोई language हो सकती है? यह है जो आप जानते हैं? हो सकता है.
हाँ सर, उड़िया होगा सर। अब देखिए, तो उड़िया में क्या होगा कि कोई बोल रहा है, आप समझ लेंगे कि वो क्या कह रहा है, लेकिन आपको कहा जाए बोलो तो आप शायद ठीक से बोल नहीं पाए, ठीक है ना। यस सर, यस सर। तो लिटरेसी जब दोनों एंड की बात यहाँ होती है, प्रोडक्शन भी रिसेप्शन भी, वरना सेमी लिटरेसी रहेगी, वो कंप्लीट लिटरेसी नहीं होगी। तो वैसे ही जब हम मीडिया लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप रिसीव कर पाए इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ प्रोड्यूस भी कर पाए। इन दोनों के बीच के कुछ फेजेस हैं, जिसमें असेसमेंट है, उसका प्रोसेसिंग है, ठीक है, शेयरिंग है, क्रिएशन है। तो बहरहाल प्राइमरीली ये जो प्रोडक्शन और रिसेप्शन का पार्ट है, दोनों आपको आना चाहिए और दोनों की एबिलिटी आपके अंदर हो और दोनों आप कर सकें, देन यू आर मीडिया लिटरेट। अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स कि उसे एसेस कर पाना, एनालाइज कर पाना, क्या कहा जा रहा है उसे सही से समझ पाना, ठीक है, एक्सेट्रा। Okay, now they're differentiating between media literacy and information literacy. So media literacy is the ability to access, analyze, evaluate and create media in a variety of forms. And information literacy is the ability to recognize when information is needed, as well as locate, evaluate and effectively communicate information in its various formats. And let's say you have a record of marks of students for the last 5 years. Now that is a data. Now that data has some meaning contained in it. Now that meaning has to be expressed. For example, what is the average performance of the students over the years? Is it improving or is it declining? So if you have, let's say, a graphical representation like this, maybe let's say excluding 2021, we have data for these past 5 years. Now let's plot the data. $20, $40, $60, $80, $100, right? So suppose the average performance of the students in 2016 was somewhere around here. In 2017, it was, let's say, around here. In 2018, it went up again. In 2019, it, let's say, came down a bit. And 2020, it jumped a lot. So this is your graph, the curve. So the information that it gives you is that over the years, the percentage of students was hovering between 55 to 75 from 2016 to 2019, but all of a sudden it rose to, let's say, 90 or 95 in 2020. Now, this is the information that you can extract. अगर ये graphical representation आपके पास है, वो data इस तरह से chart बना हुआ, कुछ लिखा हुआ, उसमें पूरा वो काला अक्षर भैंस भरा हुआ, उससे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. But if you have this graph in front of you, तो interesting piece of information आपके पास आ रही है. इसको देख के कौन सी interesting finding आपको समझ में आ रही है, कुछ बताएंगे? इसमें एक बहुत ही interesting point है. ये
ऑन एन एवरेज थोड़ा अप एंड डाउन चलता था, लेट्स से ये 55-56 से क्लोज टू 75% तक एवरेज परफॉर्मेंस होती थी बच्चों की। अचानक से ये 95% पहुंच गई। ये इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों पहुंची, कोई रीजन? सर कोविड, पैंडेमिक सिचुएशन, ऑनलाइन क्लासेस, कोविड में परफॉर्मेंस अचानक से इंक्रीज कर जाएगी, एनहांस हो जाएगी। सर बिना एग्जाम्स, ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स की डिसऑनेस्टी, प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाना, प्रॉपर प्रॉक्टरिंग नहीं हो पाना, गूगल मीट पे बच्चों ने ज्वाइन किया और साथ में दूसरा भी खुला हुआ है कंप्यूटर जो हमें नहीं दिख रहा है, मोबाइल फोन खुला हुआ है, कोई और बच्चा है जो उनकी हेल्प कर रहा है, सब ने सही सही आंसर लिख दिया, टीचर बेचारा क्या करे? अब जो लिखा हुआ है सही सही तो नंबर उसे देना पड़ेगा, नंबर दे दिया उसने। अब बच्चे जो है इतना इतना नंबर पाके भी परेशान है, सर मेरा भी इतना है, उसका भी इतना है, कैसे सेम सेम हो सकता है? अब टीचर बेचारा करे क्या? सेम सेम सबने लिखा है तो नंबर भी वैसे ही देने पड़ेंगे मोर और लेस, ठीक है। तो बहरहाल तो बच्चों के मार्क्स बहुत बढ़ गए। तो ये इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ से आपको समझ में आ रही है। और वैसे हर एक इंडिविजुअल का रिकॉर्ड आपके सामने में रखा हुआ होता तो शायद वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं डिराइव कर पाते, ये नॉलेज आपको नहीं मिल पाती। तो हम कहाँ थे? ओके, सो it is the ability to recognize when information is needed as well as locate, evaluate and effectively communicate information in its various formats. Information की जरूरत कब हमें चाहिए और डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सप्रेस कर पाना। इसे हम बार ग्राफ के फॉर्म में भी दे सकते हैं, एक कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पाई चार्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से, स्पेशली इफ देयर इज सम पिक्टोरियल काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, मेनी टाइम्स वर्ड्स में भी आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। So that makes sense to people who are involved in the management taking decisions. So it helps in making policy decisions. एक informed decision आप ले सकते। इसमें रोना शुरू कर दिया भाई, मैंने तो किसी की पिटाई नहीं की, क्यों रोना भाई? चलें नेक्स्ट। Technology literacy. Technology literacy is the ability of an individual to use technological tools responsibly, appropriately and effectively. तो technological tools क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कंप्यूटर का यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स का यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स का यूज, तो ये टेक्नोलॉजी लिटरेसी कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं? आई हैव आज की क्लास में मैंने क्या क्या टूल यूज किया, कुछ टूल्स के आप नाम बता सकते हैं? I have used Google Classroom, I have used Google Meet, I have used tool में hardware software सारी चीजें आ सकती हैं। Yes. I have used this stylus, I have used this pen tab, right? I have used my laptop, I have used the camera of my laptop, I have used the internet connection, I have used the Microsoft whiteboard जिस पे मैं अभी ड्रॉ कर रहा था पेन टाइप की हेल्प से, ठीक है। आई हैव यूज्ड दिस आंसर गार्डन पोर्टल जिस पे आपसे आंसर्स लिया और अगेन यहाँ हमें कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने की ये टूल्स हैं, बस यही यहाँ कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी लिटरेसी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल use technological tools responsibly, appropriately and effectively, ठीक है। अब ये तीनों टर्म्स responsibly, appropriately and effectively I hope you understand, but थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा दूं। एक तो नंबर 1 आपको आना चाहिए, आपको टूल के बारे में पता ही नहीं तो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास या वो टूल है नहीं या आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगी। सपोज somebody is not aware of Google Classroom and Google Meet, तो वो व्हाट्सएप पे क्लास कंडक्ट करना चाहेगा, फोन पे करना चाहेगा, दिक्कत होगी, उसके अपने लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, इवन गूगल मीट के अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं। इफ यू डोंट नो देन यू कैन नॉट यूज इट इफेक्टिवली। लास्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, गूगल मीट में 100 की लिमिट है, 100 की लिमिट के बाद क्या करें? अब लेट से मुझे क्लास लेनी है, सेक्शन ए बी सी तीनों के बच्चे हैं, 100 प्लस हो जाएंगे, 100 प्लस हो रहे हैं तो फिर मैं क्या करूँ? उसके लिए मैं दूसरी लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। अगेन अगर किसी को आइडिया नहीं है कि पैरेलली साइमल्टेनियसली सेम अकाउंट से
दो अलग अलग मीटिंग लिंक हम जनरेट कर सकते हैं, तो वो इस चीज़ का एडवांटेज नहीं ले पाएगा। वो कहेगा कि 100 के ज़्यादा बच्चों को तो हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो चलो ठीक है, अब वो 100 का ही करके करना पड़ेगा। फर्स्ट 100 जो है वो क्लास करेंगे, बाकी को एंट्री नहीं मिलेगी, जाओ बाहर जाओ, ठीक है। तो ये लिमिटेशन उसकी इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। गूगल मीट वालों ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है, लेकिन गूगल मीट वालों ने कुछ साइड से रास्ता भी दिया है उस रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करने का। वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? लेट्स से आई यूज आंसर गार्डन टूल का यूज किया हमने, क्यों? रिस्पॉन्सिबली एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करने के लिए, जिसके बेसिस पर मैं इन्फॉर्म डिसीजन ले सकूं एज अ टीचर, ठीक है। इसका इररिस्पॉन्सिबल यूज भी कर सकते हैं आप। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो अब आप लोगों को शरारत हुई, आपने आंसर गार्डन पे एक क्वेश्चन क्रिएट किया कि कितने बच्चे हैं जो ड्रिंक करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप में से कोई भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कुछ केसेस मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसमें जो है यस नो डू यू ड्रिंक, यस नो करके लोगों ने जवाब देना शुरू किया, ठीक है। आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मैं पियक्कड़ों की क्लास में हूँ या मैं सेम पीपल की क्लास में हूँ, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको और भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई वोंट गिव यू फर्दर एग्जांपल्स, बट जिसके दिमाग में खुराफात भरा हुआ वो बहुत कुछ कर सकता है। तो यू नीड टू यूज द टूल्स रिस्पॉन्सिबली। अगर रिस्पॉन्सिबली नहीं यूज करेंगे, उसका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। उसका हार्म आपको भी पहुंच सकता है और आपसे एसोसिएटेड लोगों को भी पहुंच सकता है। उसका कई बार मे बी आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं अगर रिस्पॉन्सिबली आप यूज नहीं करते हो या नहीं करना जानते हो, ठीक है। लेट्स से मैं ये पेन टैप का जो पेन यूज करता हूँ, जो स्टाइलस यूज करता हूँ, आप ये आप में से कितने लोगों ने यूज किया है जरा बताएंगे? इसमें निब लगी हुई होती है। अच्छा, तो ये है निब, दिस इज द निब। ये शायद आपको दिख रहा होगा, कैमरे में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये भी मैंने निब इसका रिमूव किया है, और ये निब जो है ये धीरे धीरे घिसती है, खत्म होती है, ठीक है। अगर मैं इररिस्पॉन्सिबल यूज करूंगा तो क्या होगा, मैं इसे पकड़ करके ऐसे रगड़ के लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरा निब जल्दी घिस जाएगा, निब खत्म हो जाएगा। एक दो एक्स्ट्रा निब्स दे रखी होती हैं, फिर निब रिप्लेसमेंट मुझे करना होगा, मुझे परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ऑफकोर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले मुझे पैसे नहीं देंगे, ना तो वो मुझे पेन टैप प्रोवाइड करेंगे, ना पेन प्रोवाइड करेंगे, ना निब प्रोवाइड करेंगे, ना ठीक है। जो मेरी अपनी चीज़ है, हालांकि कॉलेज की थी तो भी मुझे रिस्पॉन्सिबली ही यूज़ करना था, ताकि मैं फिर इस पे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल लॉस मेरा नहीं हो, ठीक है। तो इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि आप रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हैं कोई भी टूल, वेदर इट्स हार्डवेयर बेस्ड टूल और सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल और एनीथिंग। तो रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, अप्रोप्रिएटली यूज करना है और इफेक्टिवली यूज करना है। अच्छा, कुछ ट्रेट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो मीडिया इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंडिविजुअल्स के होते हैं, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ इट्स इनफ, सो लेट्स स्टॉप हियर and I request all of you, but don't mark your attendance right now. Just let me start the recording first so that your attendance gets recorded. अच्छा, एक किसी ने नेहा I guess has left. Okay, तो उनको अलग से लगा दूँगा।